सो हेलो एवरीवन, हम आते हैं सेशन 2 पे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि व्हेन टू सब्स्टिट्यूट रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स, और दूसरा हमने पढ़ा था व्हेन टू सब्स्टिट्यूट लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स। इसी चेन में हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और हमारे पास यहाँ भी सेम सिचुएशन है। In some of the cases you will see that we will be substituting e raised power f of x, whereas in some other cases we will be substituting f of x only. Now the important thing is how to decide when to substitute e and when to substitute only the exponent, that is only the function that is there in the power of e. Friends, we know that whenever we do substitution we always look for the derivative of the function that we substitute. Since derivative of e raised power x is e raised power x, the function itself, it means if there is an additional e raised power f of x in numerator of the function, this is very important. log में कहाँ होना चाहिए था? डिनोमिनेटर में. If there is an additional e raised power f of x in the numerator of the function, we will substitute e raised power f of x. Otherwise, we will substitute only f of x. What I mean to say is, I'll give you few examples to understand this concept. Like if you take a question, e raised power 2x plus 1 dx. कितनी बार e आया इस इंटीग्रल में? एज सिंपल एज दैट, सिर्फ एक ही बार e है, क्योंकि हमने अभी बात की कि अगर हम e रेज पावर f ऑफ x को t पुट करते हैं तो एक एडिशनल हमें चाहिए, तो मीन्स एक और e रेज पावर f ऑफ x चाहिए। तो कम से कम कितने चाहिए? हमें 2 चाहिए। यहाँ पे कितनी बार e आया है? एक ही बार, तो मैं e पुट नहीं कर सकता। व्हाट आई कैन थिंक ऑफ इज ओनली द फंक्शन इन इट्स एक्सपोनेंट। तो 2 रेज पावर x प्लस 1 को अगर मैं t पुट करता हूँ, differentiating both sides, so it will be 2 equal to dt upon dx. We are differentiating with respect to x, that implies 2 dx equal to dt. तो dx क्या आ जाएगा? half of dt. If this was I, so I is equal to 1 by 2 being constant will come out. ये हो जाएगा e raised power t dt, और ये हो जाएगा e raised power t plus c 1 by 2 e raised power 2x plus 1 plus c. Later on it will become a formula of e raised power some linear expression. ठीक है, I'll take another example. Now this question is there in your book only. If you talk about integration of e raised power tan inverse x upon 1 plus x square dx. So how many times e is there in this integral? It is only once. सिर्फ एक बार e आया है ना, तो e पुट नहीं हो सकता। e को पुट होने के लिए कम से कम एक एडिशनल e जो है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। ठीक है, बाकी दूसरा जो पुट करना है वो न्यूमरेटर में भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में भी हो सकता है। सो ओनली वन e। सो व्हाट विल यू डू इज, आप tan इनवर्स x को t ले लो, दिस विल गिव यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx से डायरेक्ट कर दिया इसको, dt हो गया। ये इंटेग्रल हो गया हमारे पास e रेज पावर t, एंड दिस होल थिंग इज व्हाट? dt. ठीक है, आंसर इज et plus c, and you know you substitute it for e raised power t and you will get the solution. Right, sir? So I'll take up another case. So this is the next case that I am considering, e raised power x upon e raised power x plus 1 dx. सो डियर फ्रेंड्स, अब देखो e के सिर के ऊपर क्या पावर है? x, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इन न्यूमरेटर देयर इज 1 e रेज पावर x. सो हियर आई कैन थिंक ऑफ सब्सटीट्यूटिंग e रेज पावर x. अभी तक मैं सिर्फ उसकी पावर सब्सटीट्यूट कर रहा था, राइट? सो इफ आई सब्सटीट्यूट दिस e रेज पावर x इज इक्वल टू t, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि अगर कोई फंक्शन है पीछे प्लस माइनस की टर्म्स है तो पूरा का पूरा फंक्शन सब्सटीट्यूट होगा, एक पार्ट सब्सटीट्यूट नहीं होगा। दिस विल गिव यू ex dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? dt. सो I will be equal to dt upon t, and this is equal to log of t plus c. तो log of what is the value of t? ex plus 1
plus c. So this is how do you get it. This is what actually I mean to explain to you. When can you substitute e and when only the exponent is to be substituted. There's another question, a similar type of there is in your textbook. So I am taking a kind of example only. So there are so many e's. ठीक है, जो भी e का पावर है, एक जगह प्लस एक्स है, एक जगह माइनस एक्स है, दोनों चीजें न्यूमरेटर में है, राइट. तो जो चीज अगर मैं e को पुट करना चाहता हूं तो एज इट इज क्या वो न्यूमरेटर में क्या एडिशनल है. सो व्हाट आई डू हियर इज मैं इसको t ले लूंगा अगर, सो दिस विल गिव मी e रेज पावर x. ठीक है, चेन रूल लगेगा तो माइनस e रेज ऑफ माइनस एक्स. ठीक है, dx इक्वल टू dt. So this will be dt upon t, and rest you know how to do it. ठीक है, so we will be doing all these substitutions when we will be doing next exercises and next type of questions. So these are the basic substitutions. Right now my motive is not to actually evaluate these integrals for you, but is to tell you that when you can go for which type of substitution. Right, sir? So we have done three. We have done substitution for log, we have done substitution for exponential, we have done substitution for under root, right? And now there are few substitution for trigo also, for linear also. Like trigo mein, if you can find with tan you can find sec square, with cot you can find cosec square, right? With sine you can find cos. With cos if there is sine, and similarly with obviously sec x you can find sec x, tan x. Means अगर फंक्शन के साथ आपको उसका डेरिवेटिव सामने इंटेग्रल में नजर आ रहा है तो उस फंक्शन को आप t पुट कर दो, आपका इंटेग्रल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. लाइक आई एम गोइंग टू डिस्कस वन एग्जांपल विद यू. I is equal to, I'll take a very simple example. Now if you put tan of x is equal to t, so it will give you sec square x dx equals to dt, right sir? So your I will be equal to t dt, and rest I think you know. Resubstitute for t, it will be tan square x upon 2 plus c. So you can do it quite easily, but sometimes it is not directly, sometimes it is there in indirect form. Like there is a question, I is equal to integration dx upon cos square x into 1 plus tan x whole square, square cube, whatever it is. Now if you look at the most complicated function, सब्स्टिट्यूशन हम उसी की करेंगे जो आपको थोड़ा टफ दिखेगा, राइट? तो यहाँ पे टफ तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट कंपैरेटिवली टफ लग रहा है. इसमें कौन सा फंक्शन आ रहा है, वन का तो होना मायने नहीं रखता, इट्स अ कांस्टेंट. सब्स्टिट्यूट करोगे डिफरेंशिएट करके जीरो हो जाएगा. tan का डेरिवेटिव क्या होता है? tan का डेरिवेटिव होता है हमारे पास sec स्क्वायर एक्स. सॉरी, तो क्या sec स्क्वायर एक्स है यहाँ पे? सो दिस इज 1 by cos स्क्वायर एक्स. कैन आई राइट इट एज sec स्क्वायर एक्स dx, है ना? 1 by cos square x is sec square x, and this is 1 plus tan x whole square. So what will you do now is 1 plus tan x you will take t, it will give you sec square x dx equals to dt. So बच्चे I आ जाएगा आपके पास dt upon t square. ठीक है, and this is equal to t raised power minus 2 dt. बहुत सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड होकर log लगा देते हैं. हम सबको पता है कि log तभी लगेगा if it is dt upon t, that is डिनोमिनेटर का डिग्री अगर 1 है तो log लगेगा. ठीक है, अदरवाइज इट विल गो टू द न्यूमरेटर, फॉर्मूला लगेगा x रेज पावर n वाला, एंड दिस विल बी t रेज पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, एंड आई नो दैट यू कैन डू इट फर्दर. इसी तरह से मैंने आपसे कहा था कि साइन एंड कॉस में भी जब आपको कुछ क्वेश्चंस मिले सो यू कैन ट्राई. लाइक देयर इज अनदर क्वेश्चन, sin x upon 1 plus cos x whole square. Sin x upon
1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx, राइट सर। अब आप इसको इंटेग्रेट करना चाहते हो, बेसिक सब्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट में देख के चलते हैं। ऑब्वियसली ये हमारे पास फंक्शन है, इसका सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हम उसी को करेंगे जो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखेगा। सो 1 प्लस कॉस एक्स को अगर आप t ले लोगे, इट विल बी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो साइन एक्स डी एक्स विल बी वॉट, माइनस विल गो टू द राइट हैंड साइड, सो आई विल बी माइनस कम्स आउट, साइन एक्स डी एक्स क्या बन गया डी टी, तो इट इज डी टी अपॉन टी स्क्वायर, एंड आई थिंक रेस्ट ऑफ द इंटेग्रल वी ऑल कैन इवेलुएट। ठीक है, सो 1 इट विल बी t raised power minus 2 and we can solve it further, right? So similarly there is another question that is based on the concept of this the substitution only. The question is I is equal to integration of 2 cos x minus 3 sin x dx upon, that is 6 cos x and then plus 4 sin x. If you look in the denominator, is there something common that can be taken out? Obvious, 2 is common. सबसे पहले तो basic maths लगाएंगे, if something is common please take it out. 3 sin x dx upon ये कितना हो जाएगा, 3 cos x plus 2 sin x. I don't feel that I need to discuss it with you now. आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, 3 आ गया, ये क्या है हमारे पास cos x, cos का डेरिवेटिव sin, माइनस साइन इधर दिखा है, ये क्या है 2 sin x, साइन का डेरिवेटिव cos x. So if denominator is the function, numerator is its derivative, and all of us know that if we have to integrate derivative upon function, the answer is what, log of the function, है ना। So you'll substitute the value, that is half of log of 3 cos x plus 2 sin x, right sir? So now let's talk about some formulae of integration. Like the formula was, the first one was x raised power n dx is equal to x raised power n plus 1 upon n plus 1, and here the condition was n is not equal to minus 1. और जब n minus 1 हो जाता है, ठीक है, याद है ना सबको, if n is equal to minus 1, so it is x raised power minus 1 dx, that is equal to dx upon x. यहाँ कॉन्सेप्ट लग जाता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, so it is derivative upon function, or it was natural log of denominator plus c, log of x plus c. This was the formula, right? Now if in place of x we are given a linear function, why I'm talking about linear function, because if the given function is a linear function, its derivative will be constant. ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे पास, हम बहुत सारे फॉर्मूलों को एक बार कंसिडर करके देखते हैं. सो हियर इफ आई पुट ax plus b equals to t, it will give you a dx is equal to dt. So dx is equal to 1 by a dt, and this will be 1 by a comes out, t raised power n dt. This will be 1 by a t raised power n plus 1 upon n plus 1 plus c, and this will be 1 by a into n plus 1. What was t? ax plus b whole raised power n plus 1 plus c. तो फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ा, वैसे ही रहा, x raised power n plus 1 upon n plus 1, बट साथ में क्या आ गया हमारे पास, a. ठीक है, इसी चीज को एक और चीज के लिए मैं डिस्क्राइब करता हूँ, सॉरी एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे e raised power ax plus b dx आ गया, राइट. तो इसको भी जब मैं ax plus b को अगर मैं t पुट करता हूँ, तो हमें पता है dx is 1 by a dt. This is something we have done here. So I will be equal to, in this case, I will be 1 by a comes out, et dt. ठीक है, 1 by a et plus c, it will be 1 by a e raised power ax plus b. अगर मैं यहाँ ex वाले फॉर्मूले को कंसिडर करता हूँ, उसके आंसर आता था ex ही, इसका आंसर आया e raised power ax plus b अपॉन a. तो ये a इस फॉर्मूले में भी आया,
ये ए इस फॉर्मूले में भी आया, ये ए अक्सर आ कहाँ से रहा है जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ. सो व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू शेयर विद यू इज जितने भी हमारे पास फॉर्मूले थे डायरेक्ट इंटीग्रेशन में, जितने भी फॉर्मूले थे क्या है, मतलब वहां पर जहां जहां x था, अगर आप x को रिप्लेस कर दोगे किसी एक लीनियर वेरिएबल के साथ, ठीक है, किसी भी एक लीनियर वेरिएबल के साथ, जो आपका फॉर्मूला रहेगा वो एज इट इज सेम रहेगा, सिर्फ आपका जो एग्जिस्टिंग फॉर्मूला है वो डिवाइड हो जाएगा विद द डेरिवेटिव ऑफ दैट लीनियर. दैट इज साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स विल बी, साइन का फॉर्मूला लगा लो, माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, प्लस सी, लेकिन ये डिवाइड हो जाएगा विद द डेरिवेटिव ऑफ दिस, दैट इज ए. इन सिंपल सेंस अगर मैं cos ऑफ 3x dx को इंटीग्रेट करूंगा, cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin 3x. अब इसका डेरिवेटिव, तो 3x का डेरिवेटिव क्या है, 3, राइट. ऐसे ही अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहूंगा, सपोज करो 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 कितनी भी पावर उसकी ले लेता हूँ, इफ आई राइट इट 2x प्लस 5 होल रेज पावर 7 dx, तो इसका आंसर हो जाएगा 2x प्लस 5 होल रेज पावर 8 अपॉन 8 प्लस c. इन विद दिस 8 यू विल गेट व्हाट द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो डेरिवेटिव कितना है, 2. So this is the set of another formulae. So I've shared another document of this formulae with you also. I mentioned some of the formulae, but this is the basic concept. और ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, सब्स्टिट्यूशन से, राइट सर. इसके बाद अब एक काम करते हैं, लेट्स डू सम क्वेश्चंस जो हमने अभी तक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा है, क्या हम उसको अप्लाई कर सकते हैं. सो लेट्स हैव सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस to check our knowledge of substitution of all the 4 types that we have done. So I'm taking up some of the questions, like I have taken a question sin x into sin of cos x dx. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है सामने हमें दिख रहा है, कौन सा फंक्शन इस पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, साइन ऑफ कॉस एक्स, राइट. इसमें अगर मैं cos x को t पुट करता हूँ तो व्हाट डू आई गेट, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, राइट. क्या ये चीज़ है यहाँ पे, सो लेट्स चेक. ये आ गया हमारे पास, राइट. सो दिस इंटीग्रेशन विल बी साइन, ये वाला cos x की जगह पे t, और इन दोनों की जगह पे dt, माइनस था तो माइनस चला गया बाहर, माइनस बाहर, साइन टी का क्या होगा, cos t प्लस सी, दिस इज माइनस, सॉरी माइनस cos t, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस cos ऑफ cos x प्लस सी. इस चीज़ ने हमें आइडिया दिया क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अगर साइन और cos दोनों हमारे पास हैं, राइट, तो हम क्या पुट करेंगे, किसी एक को पुट करके दूसरे का डेरिवेटिव. बट यहाँ पे जब मैंने देखा कंपोजिशन फंक्शन में मुझे ज़रूरत थी, तो डोमेन क्या था, cos को पुट किया तो साइन ऑलरेडी एक एडिशनल था वहाँ पे, तो वो उसका डेरिवेटिव बन गया, तो फंक्शन सिंपल फॉर्म में आ गया. लाइक देयर इज अनदर क्वेश्चन इन आवर टेक्स्ट बुक ओनली, दिस इज साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, राइट. अब यहाँ पे हमारी चॉइस आ जाती है, दोनों फंक्शन है, साइन भी है कॉस भी है, कॉस का डेरिवेटिव साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस. सो इफ आई हैव टू सॉल्व इट, सो अगर मैं साइन को टी ले लेता हूँ, राइट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू चेन रूल ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. इसका मतलब हो जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू 1 बाई ए डी टी. सो दिस विल बी 1 बाई ए, ये टी हो गया, और ये पूरा क्या बन गया, डी टी. यू नो रेस्ट. अदरवाइज अगर आप कॉस को टी ले लेते, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता हमारे पास, साइन हो जाता. यू कुड हैव गॉट द आंसर. आगे चलते हैं, देयर इज अनदर क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज
x into root of x plus 2 dx. How many roots are there? So there is only one root, हमने पहले पढ़ा था. अगर सिर्फ एक ही रूट है तो रूट पुट नहीं होगा, रूट के अंदर वाली चीज पुट हो सकती है. तो इसको t पुट कर लो, put it equal to t. So x is equal to t minus 2. So dx equals to dt, right? So this will give you I equals to x की जगह आ गया t minus 2 into root t dt, right? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लो, मल्टीप्लाई हो जाएगा. t की पावर 1, t की पावर हाफ, t रेस पावर 3/2 minus 2 t रेस पावर हाफ dt. रेस्ट यू नो हाउ टू डू, राइट सर? सो क्योंकि यहाँ रूट पुट नहीं हुआ क्योंकि एक ही रूट था. सिमिलरली देर आर सो मेनी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. देयर इज अनदर क्वेश्चन, x अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 dx. अगेन देयर इज ओनली वन रूट, तो रूट के अंदर वाली चीज़ ही पुट हो सकती है. x प्लस 4 को अगर आपने t पुट कर दिया तो x कितना हो जाएगा, t माइनस 4. तो dx कितना हो जाएगा, dt. तो ये हो जाएगा हमारे पास t माइनस 4 dt अपॉन रूट टी. सेपरेट द डिनोमिनेटर, सिंपल हो गया ना. तो सेपरेट करोगे तो क्या होएगा, टी रेज पावर 1/2 माइनस 4 इंटू टी रेज पावर माइनस 1/2. अप्लाई द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर. अदरवाइज यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करते हैं हम लोग. जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे डिफर ओनली बाई द कॉन्स्टेंट, वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दैट कॉन्स्टेंट. दैट इज, क्या कर सकता था मैं, x प्लस 4 माइनस 4 कर देता और फिर सेपरेट कर लेता डिनोमिनेटर को इसके साथ एक बार, दूसरी बार इसके साथ. अगेन सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता. तो उससे बेहतर है कि मैं पहले ही उसको सब्स्टिट्यूट कर लूँ एंड आई गेट द आंसर, राइट? देन देयर इज अनदर क्वेश्चन which is a type of rational function where denominator is a cubic polynomial and numerator is a quadratic polynomial. अब हम लोगों को पता है कि क्यूबिक का डिफरेंशिएशन जो है वो क्वाड्रेटिक होता है. सो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 + 3x क्यूब होल क्यूब. ठीक है सर. तो अब 2 + 3x क्यूब को t ले लो, दिस विल गिव यू 0. हो गया डिफरेंशिएशन. ये 3 है, 3 इधर आके कितना हो जाएगा, 3 3 = 9 एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी. तो एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना हो जाएगा, 1/9 डी टी. तो 1/9 बाहर आ गया, ये डी टी हो गया और अपॉन ये हो गया टी क्यूब. बेस को पुट किया था ना आपने, होल रेस पावर 3 है, ऊपर आ गई. एंड रेस्ट यू नो हाउ टू डू इट, 1/9 टी रेस पावर -3 डी टी. और आगे फॉर्मूला लगाना ज़रूरी है. सो सिमिलरली देयर आर मैनी मोर क्वेश्चंस that can be simplified by applying the basic concept, right? So that's all about from integration by substitution session 2, and now we will be talking about integration of trigonometric functions. Thank you so much.